Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for ICMR Scientist to Be examination. I am constantly providing you different videos comprising different questions from the syllabus of ICMR. So I hope you all are preparing pretty well. So before starting the video, I would like to request to please subscribe the channel so that I will feel motivated and I will provide more and more fruitful content for all of you. So, in this video, I will provide questions related to reproductive and child nutrition, which is the most requested video by all of you. So, I have planned to provide questions from this unit, the most expected question, along with detailed explanation. So, hit the subscribe and let's solve the questions. The first milk secreted after childbirth rich in antibodies is called what? So, you must be able to answer this because this is a very simple question. You must have read this in your 12th NCERT book. Casein, whey milk, colostrum, mature milk. So it is colostrum that is known as the first milk which is secreted by the mothers after the childbirth, which is very much beneficial for the newborn because it is rich in IgA antibodies. As a newborn is unable to provide immunity by itself, so it is provided through the maternal antibodies, that is IgA. So it will protect the newborn to fight against different infections, and therefore it is also known as liquid gold. Liquid gold भी इसे इसलिए ही बोला जाता है because it is very very much nutritious and beneficial for the newborn. So it is produced during first 2 to 3 days after the delivery. राइट तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में. Now next question is, according to the World Health Organization, exclusive breastfeeding is recommended for. जितने भी आपके रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हैं तो उन सब के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जितने भी प्रोवाइड करूँगी ऑल आर लाइक इंस्पायर्ड बाय प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं ICMR के, एंड जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उससे भी ज़्यादा डिटेल मैंने थोड़ा सा देखा है, चेकआउट किया है, एंड देन आई हैव प्रोवाइडेड दिस पावर पॉइंट फॉर यू. सो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपको. डू वॉच इट टिल द एंड. सो यहाँ पे बात हो रही है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की. सो व्हाट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? सो एज पर WHO ने क्या डिफाइन किया है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ. अब पहले जो 6 महीने होते हैं न्यूबॉर्न के लिए, so that in that period the newborn does not require any other liquid or solid. किसी भी लिक्विड या सॉलिड की ज़रूरत नहीं होती है, नॉट इवन वाटर. एज पर WHO, द न्यूबॉर्न टिल 6 months they don't need any kind of food, any kind of liquid other than the mother's milk. सो ब्रेस्ट मिल्क ही है, उनको इससे पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है. कोई फॉर्मूला, कोई फूड, कोई वाटर नहीं. सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर 0 to 6 months, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट्स आफ्टर 6 months. 6 month के बाद थोड़ा थोड़ा कुछ और भी दिया जाता है इन्फेंट्स को, बट 6 महीने तक WHO के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड फॉर 6 months. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which micronutrient deficiency in pregnant women leads to neural tube defect in fetus? So neural tube defect के लिए कौन सा vitamin deficiency responsible है? So what is this NTD? Neural tube defect. So these are serious birth defect of the brain and spine occurring in the first month of pregnancy when the neural tube fails to close completely. यानी जब न्यूरल ट्यूब जो है उसके फॉर्मेशन में कोई डिफेक्ट आ जाए तब इसे बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. नाउ इट इज़ वेरी वेरी सीरियस एज इट इज़ कंसर्न विद द डिफेक्ट्स इन ब्रेन. यानी कि हमारा जो ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें हमारे डिस्टर्बेंस आ जाएगा, एंड स्पाइन. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो बहुत कॉमन डिजीजेज हैं in this NTD, like spina bifida and anencephaly, ये दोनों. So it is usually it can be like happen during the initial
मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. सो मेजर कॉज इसका क्या होता है अब तक जो देखा गया है वो है ड्यू टू फॉलेट डेफिशिएंसी, यानी फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है. एंड ऑल्सो इट इज सेड दैट कौन से अदर फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, ओबेसिटी, डायबिटीज, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ये सब भी इन सबको एनहांस कर देते हैं. नाउ अ डेज लाइफस्टाइल डिजीजेज हो या कोई भी डिजीज हो, उनके सिर्फ एक फैक्टर नहीं कह सकते हम. देर आर सो मेनी अदर सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज. सो इसीलिए बोला जाता है कि ओवरऑल हेल्थ हमें ठीक करने की जरूरत होती है, ना जस्ट सिर्फ एक पॉजिटिव एजेंट को या पॉजिटिव फैक्टर को डिक्रीज करने की, नहीं, ओवरऑल आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए. तो आंसर इसका क्या आया? फॉलिक एसिड. Now the recommended additional energy intake during pregnancy is approximately 100, 200, 350, 600. So it is during pregnancy it is 350, right? यानी जो प्रेगनेंसी है उस टाइम पे जो एडिशनल एनर्जी इनटेक है, कितनी कैलोरीज और बढ़ानी चाहिए, इट इज अबाउट 350 इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमन. एंड इफ द वुमन इज लैक्टेटिंग देन इट इज 600, यानी थोड़ा सा और एनर्जी, क्योंकि वो लैक्टेटिंग है, फर्स्ट 6 मंथ में न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है न्यू बॉर्न, सो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो अकॉर्डिंगली कॉम्पनसेट करने की ज़रूरत होती है. नाउ द नेक्स्ट वन, द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ वेट that is less than 2.5 kg is called what? Preterm birth, intrauterine growth restriction, low birth weight, neonatal malnutrition, or what? So if the newborn is less than 2.5 kg, it is known as low birth weight. If it is less than 2500 grams or 2.5 kg, so what can be the major causes? Maternal malnutrition, it means मदर में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है. इट कैन बी मदर कैन बी एनेमिक, और इट इज ऑल्सो इट कैन ऑल्सो हैपन कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ है. सो ऑल दीज फैक्टर कैन लीड टू द लो बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द रिकमेंडेड डेली iron supplementation for pregnant women under Indian national program is how much? 30 mg iron, 250 microgram folic acid, 60, 500, 120, 1000, 10, 400. So the recommended daily iron supplementation for pregnant women in this Indian national program is about 60 mg iron प्लस 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, राइट. अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है, सो यू कैन सी कौन सा डिजीज हमें देखने को मिलेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा. तो अब माइंड में आपके क्लिक कर देना चाहिए, व्हेनेवर अ क्वेश्चन रिलेटेड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इज आस्क्ड, automatically you should remember, not you should, you must remember that there is something deficient in folic acid in the mother. So this is very much like lethal. So the daily intake is 60 mg iron and 500 microgram folic acid. Now next one, which indicator is used to measure chronic malnutrition in children? Children में chronic malnutrition कैसे डिटेक्ट किया जाता है? Weight for age, height for age, weight for height, BMI for age. So it is usually height for age, यानी height for age से हमें पता चलता है stunting का, and this is due to chronic malnutrition. Weight for height ये क्या दिखाता है? वेस्टिंग, यानी कि अक्यूट मालन्यूट्रिशन दिखाता है. वेट फॉर एज इज अंडर वेट. ये सारी कंडीशंस इस तरह से मेजर करी जाती हैं. द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड शुड आइडियली बी इंट्रोड्यूस्ड एट 4 months, 6 months, 9 months, 12 months. तो ये तो सबको पता है, इट इज आफ्टर 6 months. यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम देने लग जाते हैं न्यूबॉर्न को आफ्टर 6 months, यानी 6 months तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क इज द ओनली रिक्वायरमेंट एंड नथिंग मोर देन दैट. एंड आफ्टर दैट it can like semi solid food can be offered, mashed fruits, दलिया, खिचड़ी, सीरियल्स, ये सारी चीजें दिया जाता है न्यूबॉर्न को. Now ninth question, a severe acute malnutrition, that is SAM, in children is defined as a weight for height, height for age and BMI less than 18. So severe acute malnutrition क्या होता है? SAM. जनरली इस पे क्वेश्चंस आते हैं सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन पे. सो एज द नेम सजेस्ट,
इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी सीवियर हम बोल रहे हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, देन इट बिकम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन डिफाइंड बाई वेरी लो वेट फॉर हाइट। अभी जस्ट हम बात कर रहे थे वेट फॉर हाइट, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा आपका वेट फॉर हाइट वाला आपका पैरामीटर, यानी कि यहाँ पे मेंशन्ड है। एंड ये क्या होता है, इट इंक्रीजेस डेथ रिस्क बाय अबाउट 9 फोल्ड्स, यानी कितना ज़्यादा ये लीथल हो गया आप सोचिए, 9 फोल्ड्स आपका डेथ रेट ये बढ़ा सकता है। सो इट रिक्वायर्स अर्जेंट केयर वाया रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड्स, RUTF, RUTF, यानी ये जिनमें भी देखने को मिलता है। सो इट इज़ लाइक रैपिडली इसका जो थेराप्यूटिक ऑप्शन है वो यूज़ किया जाता है, जो कि है रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड्स, RUTF। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज डिफाइंड एज वेट फॉर हाइट विच इज लेस देन दिस वन। तो इसका आंसर राइट कौन सा होगा, ऑप्शन बी। Vitamin A deficiency in children primarily causes rickets, night blindness, scurvy, pellagra. So it is night blindness. Obviously, vitamin A deficiency से क्या होता है, night blindness होता है. The midday meal scheme in India mainly targets which group? Pregnant women, school children, adolescents, infants, or what? So midday meal का जो प्रोग्राम है वो उसका मेन टारगेट ग्रुप कौन होता है? सो इट इज स्कूल चिल्ड्रन। गोल क्या होता है, द मेजर ऑब्जेक्टिव एंड द गोल इज टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन अमंग द ग्रोइंग चिल्ड्रन। उनके जो ग्रोइंग एज है उनका उनका जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रहा है, न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट है एक्चुअल जो चाहिए, वो है मेन ऑब्जेक्टिव। एंड ऑल्सो इससे क्या होगा, मिड डे मील प्रोवाइड करने से बच्चे स्कूल आने के लिए भी प्रमोट होंगे। सो इट विल इंक्रीज द स्कूल अटेंडेंस एंड रिड्यूस द क्लासरूम हंगर। So the right answer is B, school children. The recommended minimum birth spacing between two pregnancies is, this again important question, दो pregnancy के बीच में कितना duration होना चाहिए, 12, 18, 24, 36 months. So it is usually 2 years का difference देने के लिए recommend किया जाता है in between the two successive pregnancy, that is 24 months. So it will improve the maternal health and also reduces the infant mortality. The main protein in human breast milk is casein, lactalbumin, collagen, albumin. So it is lactalbumin which is present in the human milk. Which anthropometric measurement is used for rapid screening of malnutrition in field survey? यानी कैसे पता चलता है कि जब सर्वे के लिए जाते हैं, सो कौन सा रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे ये पता चलता है कि दिस वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज malnourished? So is it BMI, head circumference, MUAC or chest circumference? So it is none other than MUAC, that stands for mid upper arm circumference. यानी it is a simple field tool होता है used in community screening, identifies acute malnutrition. इस टाइप का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये टेप रहता है, टेप जैसा एक रहता है, टूल है ये. सो इट हैज़ सम मार्किंग्स, यू कैन सी यहाँ पे जैसा हमारे पास स्केलिंग होता है वैसा ही मेजरमेंट होता है. मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस टेप 33 सेंटीमीटर का होता है. सो रेड है यहाँ तक 11.5 तक, येलो है 11.5 तो इतना, एंड उसके बाद यहाँ से ये मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड किया है अथॉरिटीज़ ने उसे माना जाता है. सो रेड येलो ग्रीन उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड किया जाता है कि malnourished है या नहीं है. The first 1000 days of life refers to what? Birth to 2 years, conception to 2 years, birth to 3 years, pregnancy only. So it is the first 1000 days किसे बोला जाता है? Conception to 2 years. राइट, फर्स्ट 1000 डेज का मतलब है प्रेगनेंसी हो गया आपका 270 डेज का. यानी अगर आप पिक्चर पे जोड़ पा रहे हैं, सो 270, लेट मी ऑल्सो कैलकुलेट, 270 प्लस 365 प्लस 365, सो इट इज 1000. यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होता है अबाउट 9 मंथ्स का, इट इज 270 डेज. ठीक है, तो 270. अब बर्थ से लेके बच्चा जब तक 1 साल का होता है तो और 365 डेज हो जाएगा. उसके बाद 1 ईयर से 2 इयर्स ओल्ड होने तक का और 365 डेज को ऐड कर दो, सो इट विल बिकम 1000 डेज. सो 1000 डेज
यानी फर्स्ट 1000 days of life refers to the time period in between the conception till the infant become or the newborn become up up to the age of 2 years. So इसे बोला जाता है first 1000 days of life. सो इसमें मैंने जितने क्वेश्चंस बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसके सेकेंड पार्ट आएंगे. एंड ऑल्सो मैं अभी ये भी बोलना चाहती हूँ कि जितने अलग अलग मैं यूनिट्स कवर कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड एन आइडिया कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, राइट? इसीलिए मैं मल्टीपल यूनिट्स पैरेलली लेके चल रही हूँ, बिकॉज if I will stick with this communicable disease for so long and then I will start bioethics and then I will start some other unit, then you will not have an idea कि कैसे prepare करना है. So my only motive is to make you people aware कि कहाँ से कितना कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है? तो इसीलिए मैं parallelly आई एम वर्किंग सो हार्ड कि मैं बहुत सारे यूनिट्स को कवर अप कर पाऊँ, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, क्योंकि आपका 12th तक का डेट है, 12th मार्च, यानी अभी 2-3 दिन बाद फॉर्म डेडलाइन हो जाएगा. एंड देन दे मे अनाउंस द डेट वेरी सून, लाइक एट द एंड ऑफ दिस मार्च और स्टार्टिंग अप्रैल में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कब है. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट because it is also like very very difficult to provide video every day, but I am doing that as since I am working as a scientist only in AIIMS, so I am putting my lot of efforts, so I am expecting in return only a like and subscribe, nothing more than that I want from you. So do it and keep learning, and thank you so much for watching.